Hello everyone, my name is Anupam Yadav and I welcome you all to class 5th maths. Okay, so in previous video we already discussed about how to add two or more than two fractions, and we considered two types. The first type is that when the denominators are same, then how you can add two or more than two fraction. It is very simple, only you have to add the numerators and denominator will always be same. Now the second type is that when the denominators are different, then how we can add two or more than two fractions. In that case we have to firstly find the LCM of denominator and the further procedures goes on. Okay, so in today's class we are going to solve some questions which is based on both the types. Okay, when the denominators are same, when the denominators are different. Okay, so let's take a first example, that is 3 whole 2 upon 7 plus 2 whole 3 upon 7. So here you can see that denominators are same, that is 7. So ये first type of question है जिसमें denominator क्या है, same है, and both the fractions are mixed fraction. So firstly we will convert both the fraction into a improper fraction, and we already discussed about how you can convert a mixed fraction into a improper fraction. So firstly we have to multiply its denominator with its whole part, and then we have to add its numerator. Okay, so firstly you will multiply denominator with its whole part, that is 3 into 7, and plus you will add its numerator, and denominator will always be same, that is 7. Put addition sign. Okay, now once again multiply its whole part with its denominator and add its numerator, and denominator will always be same. Now solve it, that is 3 sevens are 21 plus 2 divided by 7 plus 2 sevens are 14 and 14 and plus 3 divided by 7. Now 21 plus 3 you will get 23. Okay, so 23 upon 7 and plus 14 plus 3, how much you will get, that is 17 upon 7. Okay, here is 7. So here you can see that it is converted into a simplest form where denominators are same, and we know that how to solve when denominators are same, only you have to draw a horizontal line. Now put the denominator as it is, that is 7. Now add the numerator, and finally you will get 40 upon 7. This is your answer. कितना सिंपल है ना. ना वंस अगेन देखो, फिर से चीज़ों को समझो. आपके पास दो फ्रैक्शन दिए हुए थे, दोनों फ्रैक्शन क्या थे, मिक्स फ्रैक्शन से. तो फर्स्टली हम मिक्स फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना, इस डिनोमिनेटर का इससे मल्टीप्लाई करते हैं, होल पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं. सो 7 का हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, और जो आपका न्यूमरेटर होता है उसको हम ऐड कर देते हैं. सो वी विल ऐड इट्स न्यूमरेटर, और आपका डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर 7 ही रहेगा. क्लियर है. नाउ वंस अगेन फिर हमने क्या किया, सेम चीज़ रिपीट की, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 3 किया डिवाइडेड बाई 7. नाउ 3 sevens are 21 and plus 2 divided by 7 plus 2 sevens are 14 plus 7 divided by 7. Now after solving it you will get 23 upon 7 plus 17 upon 7, and here you can see that denominators are same. जब डिनोमिनेटर आपका सेम होता है तो आपको कुछ नहीं करना होता है, ओनली यू हैव टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन. नाउ डिनोमिनेटर जो भी आपको यहाँ पे लिख देना है, एंड ओनली यू हैव टू ऐड द न्यूमरेटर. ठीक है, सो आपने 23 प्लस 17 किया और दोनों को ऐड किया, तो यू विल गेट 40 अपॉन 7 एंड दिस विल बी योर आंसर. अच्छा, इसको ना एक और तरीके से कर सकते हैं. लेट्स चेक आउट कि और इसका तरीका क्या हो सकता है. ठीक है, आपके पास आंसर कितना आया है, 40 अपॉन 7. ठीक, एंड यू कैन ऑल्सो, दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. 40 अपॉन 7 जो आपका आंसर आया है, दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, एंड यू कैन कन्वर्ट दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन. ओके, सो यू विल गेट 5 होल 5 अपॉन 7. ठीक है, सो अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, सो यू विल गेट दिस एज अ आंसर. आप कन्वर्ट करो, पॉज करके वीडियो, डेफिनेटली यू विल गेट अ 5 होल 5 अपॉन 7. ठीक है, नाउ इसको एक और तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेट्स चेक आउट. ठीक है, देखो समझो इस चीज को. देखो, दिस इज योर होल पार्ट, 3 होल एंड 2 होल.
सो फर्स्टली वी विल ऐड, वी कैन सेपरेट बोथ द टर्म्स। देखो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 3 + 2/7 + 2 + 3/7। हमने क्या किया, जो होल पार्ट था उसको इससे सेपरेट कर दिया, जो होल पार्ट था इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। सो 3 होल + 2/7 + 2 होल 3/7। नाउ ऐड बोथ द होल पार्ट, ठीक है, ऐड कर दीजिए दोनों होल पार्ट को। सो व्हाट यू विल गेट, 3 + 2 5 आ गया, एंड प्लस व्हाट यू विल गेट, अब आप क्या बनेगा आपके पास, ये दोनों जो मिक्स, जो आपके पास फ्रैक्शन मिले हैं इनको भी ऐड कर दीजिए। सो एज वी कैन सी दैट डिनोमिनेटर आर सेम, दैट इज 7 and 7, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, दैट इज 7 and 7। सो यू कैन इजिली राइट एज 7 एंड ऐड द न्यूमरेटर, दैट इज 2 + 5, 2 + 3 यू विल गेट 5। अब देखो 5 + 5/7 आया है ना, सो यू कैन राइट एज 5 होल 5/7। देखो सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ शॉर्टकट मैथड, बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से यू दैट, बट ट्राई टू सॉल्व विद दिस मैथड, बिकॉज जितना आप उन चीज़ों को वर्क करोगे इसके ऊपर उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा। इफ समवन आस्क यू इन अ वेरी रैपिड मैनर, देन यू कैन सॉल्व इट विद दिस मैथड। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. So this is all about today's class. We will further discuss about some more questions on the basis of addition of subtraction, addition as well as subtraction. Thank you so much and God bless you.